I am back with chapter number 1. As I have given you the overview of this chapter in my previous video, hope you watched it and liked it. Today let's start with this chapter. Chapter 1, Nature and Significance of Management. Now I am going to tell you what is the definition of management. Management is a process of working with and through others to effectively achieve the organizational objective by efficiently using limited resources in changing environment. मैंने जैसे बताया था कि मैनेजमेंट हमेशा चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी होता है, वर्क करता है और हर फील्ड पे वर्क करता है. सो मैनेजमेंट इज बेसिकली क्या होता है कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग योर वर्क डन थ्रू अदर्स. Meaning in concept of management. Management is the process of getting done with the aim of achieving goal effectively and efficiently. Guys, ये two word बहुत याद रखना है. I have mentioned my previous video also that effectively and efficiently is the most important one words in whole business studies. You will use various types of words in different types. Process, effectiveness and efficiency. Process refers to the primary function like planning, organizing, staffing, directing, controlling, performed by the management to get things done. Means if you want to achieve your goals, you have to follow all these things like planning, organizing, staffing, directing, controlling, and you have to manage it well. You have to follow all these steps properly, and you have to keep checking all these are working good or not. Effectiveness means completing the right task to achieve the deputed goal within the frame. Effectiveness means होता है कि आप अपना टास्क टाइम पे कंप्लीट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. Now come to efficiency. Efficiency means completing the task on time but with minimum cost and minimum utilization of resources. What is the difference between effectiveness and efficiency? Effectiveness is doing things right task, completing the assigned job on time, no matter whatever the cost. Effectiveness में हम लोग कभी भी नहीं देखते कि कॉस्ट क्या है हमारी. हम बस इतना देखते हैं कि हम लोग राइट टाइम पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. क्या हम कभी जाते हैं कोई क्लब, क्या हम ये देखते हैं कि हम लोग की कॉस्ट क्या है वहाँ के क्लब की या कुछ है, बस हम ये देखते हैं वहाँ का एम्बियंस कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है. तो वो क्या होता है कि हम लोग इफेक्टिवनेस देखते हैं उस क्लब की इफेक्टिवनेस कैसी है. सिमिलरली विद एफिशिएंसी. फिर हम लोग ऐसा नहीं है दोस्त कि हम लोग क्लब जाते हैं बहुत हाई फाई और बहुत पैसा उड़ाता है, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन हाँ उतना ही इफेक्टिवनेस फर्स्ट हमारा टारगेट क्या होता है कि इफेक्टिवनेस देखें. सेकेंडली क्या होता है एफिशिएंसी. एफिशिएंसी इज अबाउट डूइंग द जॉब इन कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. मीन्स हमें अपनी कॉस्ट रिड्यूस करनी है, किसी भी तरीके से कॉस्ट रिड्यूस करनी है और अपने रिसोर्सेज को कम से कम यूटिलाइजेशन में करके और अच्छे से यूज करना, कोई वेस्टेज ना हो अपने रिसोर्सेज की. तो हम लोग ये सब चीजों का अगर ध्यान रखते हैं तो आपका गोल तो अचीव हो गए टाइम के साथ साथ, क्योंकि इफेक्टिवनेस ऑलरेडी प्रेजेंट है. बट एफिशिएंसी अगर होगी तो गोल के साथ साथ आपकी कॉस्ट भी मिनिमम होगी, आपको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपका रिसोर्सेज ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा. सो होप यू सीइंग दिस डिफरेंसेस. If you want to take the screenshot, you can go for it. These notes are very good for you. Correct. Now I'm going to tell you about what are the characteristics of management. Characteristics of management means where management, what is management, management का टारगेट क्या होता है, मैनेजमेंट का नेचर कैसा है. मैनेजमेंट इज intangible force. We cannot see, we cannot touch, we can only see the result of management. अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होगा ना तो हम लोग उसको रिजल्ट के रूप में देखेंगे कि दोस्त इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इसीलिए इसने अपना टारगेट टाइम पे अचीव किया और कॉस्टिंग में बहुत कम है, इसीलिए इसको इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल फोर्स. फिर है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट का टारगेट, मैनेजमेंट मीन्स ही हम लोग इसलिए करते हैं कि हम अपना टारगेट अचीव कर सके, इसलिए ये गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है कि हम लोग इसमें गोल अचीव करते हैं अपने. फिर परवेसिव. मैनेजमेंट इज परवेसिव. मैनेजमेंट परवेसिव क्यों है? क्योंकि इट कैन बी प्रेजेंट इन एवरीवेयर. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट नेवर एंड. मैनेजमेंट हमारा हमेशा, लाइक बीएससी में एक कोट है, लाइक
मेंबर में कम, मेंबर में गुड, बट कंपनी गोज फॉर एवर। सिमिलरली ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि परवेसिव है, ये हमेशा चलता रहता है, ये एंड नहीं होता है। मल्टी डायमेंशन मीन्स मैनेजमेंट किसी भी फील्ड पे, किसी भी जगह पे यूज हो सकता है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। एज आई टोल्ड यू, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट किसी भी इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होता। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। सेकेंड फंक्शन इज डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द environment, according to the rules and regulations, according to the situation. It is a dynamic function. Management is a goal-oriented process, and organization has a set of simple and clearly stated goals. As I mentioned you previously that management हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक टारगेट होता है, तो एक सेट ऑफ गोल्स होता है, उसको फुलफिल करने के लिए हम लोग मैनेजमेंट फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, इट इज कॉमन टू ऑल। एज आई टोल्ड यू कि ये हर जगह अप्लाई होता है, किसी भी इन्वायरमेंट में कहीं पे भी अप्लाई हो जाता है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है कि हम लोग उसको मतलब काम अपना टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट को करते हैं। एक होता है मैनेजमेंट बाय पीपल। मैनेजमेंट बाय पीपल क्या होता है कि हम उसमें अपने एम्प्लॉयज को, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको मैनेज करते हैं कि जिससे कि वो अपने उनके इंडिविजुअल के इंटरेस्ट के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट भी फुलफिल हो रहा हो, उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है, उसको भी मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन। मैनेजमेंट बाय ऑपरेशन में क्या होता है कि देखते हैं कि हमारा सेल्स डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है, और हमारा सेलिंग, हमारा परचेजिंग डिपार्टमेंट, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट, हमारा टूल्स, टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होती है। मैनेजमेंट सबके बीच में कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, ये तीनों के बीच में मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट बाय पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन होने का बहुत जरूरी है। अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो मैनेजमेंट आपका अच्छा नहीं होगा। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। एज आई टोल्ड यू दैट मैनेजमेंट कभी भी एंड नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, और ये हर मैनेजर फॉलो करता है और परफॉर्म करता है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। All the individuals in the organization contributes towards achieving the goals set by the organization. Means ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। अब हम लोग किसी भी पार्टी में अकेले तो नहीं जाते हैं ना, तो वहां पर भी जाते हैं तो ग्रुप के साथ ही जाते हैं, टीम में जाते हैं। तो और हम लोग जब जाते हैं तो एक साथ रहते हैं, अगर कोई भी इश्यू होता है मिल के पार्टी करते हैं, मिल के वापस आते हैं। तो हम लोग का टारगेट क्या हुआ, इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन। अब डायनेमिक फंक्शन कैसे है, सी अब हम क्या, आप एक चीज बताओ, जैसे मैंने यहाँ पर क्लब का एग्जांपल ले लिया, तो मैं क्लब का एग्जांपल लूंगी, आपको पार्टी कराऊंगी बीएससी में। तो ये डायनेमिक फंक्शन कैसे है, क्या आप हमेशा एक ही जगह जाते हो, एक ही क्लब में जाते हो? नहीं ना, हमेशा चेंज करते रहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द मूड, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द न्यू क्लब अगर आ गया है कोई, तो उसके वहां जाके देखते हैं, ऐसा करते हैं। ऐसे ही तो हम लोग तो उसमें भी उसके न्यू क्लब में जाते हैं, तो वहां के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं, वहां के अकॉर्डिंग ड्रेसेस वेयर करते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट किसी भी इन्वायरमेंट में चेंज हो सकता है, चाहे सोशल इन्वायरमेंट हो, चाहे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, चाहे टेक्नोलॉजिकल के इन्वायरमेंट में चेंजेस हो, तो जैसे इसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। मैनेजमेंट इज ए इनटैंजिबल फोर्स। एज आई टोल्ड यू, इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी टच, इट कैन नॉट बी फील, so it is an intangible process. Now what are the management objectives? Management objectives, there are three types of management objectives: organizational, social and personal. Organizational objectives can be divided into three parts, that is survival, growth and profitability. अब अगर मार्केट में आपको स्टेबल रहना है, सर्वाइव करना है, तो आपको क्या चाहिए होगा, अर्निंग इनफ रेवेन्यू। पहला तो होता है कि हमें अपनी कॉस्ट भी कम करनी है और प्रॉफिट ज्यादा करना है, और हमें पॉजिटिव डिसीजन लेने होंगे कि हमेशा ऐसा ना हो कि हम लोग नेगेटिव डिसीजन लो जो हमारे बिजनेस के सर्वाइवल पे अट्रैक्ट करे। तो अगर इस सब चीजें कैसे होगी, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा और अपने कॉम्पिटिटर्स को इजिली बीट कर सकते हो। अगर प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगा, अगर आपकी कंपनी में एफिशिएंसी है और इफेक्टिवनेस है, तो आप प्रॉफिट हमेशा आराम से कवर कर सकते हो अपना। तो अब ऐसे क्या होगा कि आप कॉम्पिटिटर्स के सामने मतलब लड़ सकते हो कॉम्पिटिटर्स से अपने, क्योंकि आपका प्रॉफिट ज्यादा है, आप भी उनके लेवल का प्रॉफिट कमा रहे हो, उनके लेवल को बीट कर सकते हो।
ग्रोथ, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, सर्वाइवल है, प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ग्रोथ होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता बॉस, क्योंकि आपका मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि हर चीज आप इजीली मैनेज कर सकते हो। आप किसी भी कोई अगर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं तो उसको भी फुलफिल करो, उसको ग्रैब करोगे, और कोई थ्रेट होगा तो उसको भी आप अपने थ्रेट्स को भी, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप कोई भी थ्रेट्स को भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी एज अपॉर्चुनिटी लोगे और उसको फेस करोगे और उससे अपॉर्चुनिटी जनरेट कर सकते हो अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो। देन सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट इज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट इज रीजनेबल रेट। अगर हम सपोज मेरा कंप्यूटर है, कोई प्रोडक्ट सपोज एक क्लोथ है, एक कुर्ती बना रहा है, वो कुर्ती 2000 रुपीज पर पीस बेच रहा है एंड आप अपना रेट देखते हुए 1500 पर पीस बेच रहे हैं, सेम क्वालिटी और बस आपका सेम ब्रांड बट विद अ गुड क्वालिटी विद अ गुड ब्रांड, और आपका पास प्राइस कम है, तो किसके पास जाओगे आप? ऑब्वियसली कस्टमर हमारे पास आएंगे क्योंकि हमारा प्राइस कम है और साथ ही साथ क्वालिटी भी उनको सेम मिल रही है, तो व्हाई वुड दे गो देयर? दे विल प्रेफर अस। ऑब्वियसली हम लोग भी जब जाते हैं शॉपिंग करने तो हम लोग उनको ही देखते हैं जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो, उनके प्राइसेस भी अच्छे हो और रीजनेबल प्राइसेस पे हो। तो ये सब मेंशन करना बहुत जरूरी होता है अपने मैनेजमेंट में कि सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लोग बस कॉस्ट ही बढ़ाए जा रहे हैं, प्रॉफिट ले जा रहे हैं, बस सोशल ऑब्जेक्टिव को भूल रहे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हमें सोशल ऑब्जेक्टिव को भी ध्यान देना पड़ता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इंक्लूड मीटिंग द फाइनेंशियल नीड्स लाइक कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड सेफ्टी नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज लाइक बेसिक एमिनिटीज, पीयर रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। सी पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अगर हम ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव को ही ध्यान में रखेंगे और आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करोगे, उनको पर्क नहीं दोगे, उनको अपने कंप्यूटर के जितने कंप्यूटर आपके अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं उनके लेवल की सैलरी नहीं दोगे तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे और वो टारगेट अचीव नहीं करेंगे, क्योंकि हर कोई आज कल पैसे कमाने के लिए आपके ऑफिस में काम करता है। हम लोग भी वर्क करते हैं तो हम लोग भी ऑफिस में पैसे कमाने के लिए ही टारगेट को अचीव करते हैं, क्योंकि as we are giving them a work and we need something in back, so उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करना चाहिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है? फर्स्टली अचीविंग ग्रुप गोल्स, क्रिएट अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, इंक्रीजेस एफिशिएंसी, हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। एज आई टोल्ड यू कि मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट होता है, वो सब चीजें मैंने पहले बताई थी कि एक तो पर्सनली हम लोग का गोल अचीव होता है, सेकेंडली ये एक डायनेमिक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, ये मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को बढ़ाता है और ये आपको हेल्प करता है कि आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव हो और हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी को भी डेवलप करने में हेल्प करता है। If you want to take the screenshot of all these, you can take, go ahead. No doubt these notes are very good. Now I want to tell you about the nature of management. Management as an art. As I told you in my previous video when I was giving you the overview that I personally think that management एक आर्ट भी है, एक प्रोफेशन भी है, एक साइंस भी है। तो इस चैप्टर में उन्होंने यही बताया कि मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, मैनेजमेंट साइंस कैसे है और मैनेजमेंट प्रोफेशन कैसे है। So here we go. What is art? Actually में art क्या होता है? Art refers to a skillful and personal application of existing knowledge acquired through study, observation and experience. आर्ट में हम लोग को एक स्किल नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल एप्लीकेशन होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं कि आर्ट की भी स्टडी होती है, हम लोग उसमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसको बनाते हैं, कैसे बनाना है, कौन से कलर कब यूज करने हैं, स्केलिंग क्या होगी, लाइन्स की मीटर्स क्या होंगे, ये सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं ना। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी थ्योरीज होती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है एग्जिस्टिंग एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। In every art, there are the systematic and organized study material available to acquire theoretical knowledge, and experts in their respective field apply these principles to their respective art forms. As management भी similarly, आपके सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल होते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं उसकी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ऐसे ही नहीं किया जाता, उसकी बहुत प्रॉपर नॉलेज होती है और उसके लिए बहुत ज्यादा से थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ता है। Personalized application. The use of basic knowledge differs from the person to person and the art is very personalized concept.
सी जैसे आज हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली क्या होता है मैनेजमेंट में, पहले हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं कि ये क्या वर्क कर रहा है लॉ, ये क्या कैसे हो रहा है। तो हम लोग ये सब चीजें प्रैक्टिकली अप्लाई करने के बाद ही हम लोग फॉलो करते हैं। Based on practical and creativity, as art involves creativity and practice of the expert, similarly like in management also, मैनेजर अच्छे से मैनेजमेंट तभी कर पाएगा जब उसको प्रैक्टिस होगी, वो बहुत ट्रेन मैनेजर होगा, तभी वो अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से मैनेज कर पाएगा। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट इज एज अ साइंस, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन जनरल ट्रुथ। सिमिलरली जो मैनेजमेंट है वो भी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, मैंने जैसे भी बताया। और साइंस में से प्रिंसिपल एंड एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लाइक न्यूटन लॉ बना, ऐसे बहुत सारे ग्रेविटेशन लॉ बना, बहुत सारे लॉज बने साइंस में। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज बने हैं, वो उन्होंने अप्लाई भी किए हैं, पहले उसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। तो अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ोगे ना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तब आप उसमें पढ़ोगे कि फेयोल एंड टेलर्स के लॉज वगैरह है, उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या किया, वो सब मैं आपको उस चैप्टर बताऊंगी। तो उसके लिए आपको वो वीडियो वॉच करना बहुत जरूरी है। यूनिवर्सल वैलिडिटी, जैसे साइंस के लॉज को यूनिवर्सली वैलिडिटी मिली हुई है, वैसे ही मैनेजमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज को यूनिवर्सली वैलिडिटी मिली हुई है। So I must say that management is on the path of becoming a science. Management is profession. Profession means occupation for which specialized knowledge and skills are required and entry restricted. जैसे किसी भी प्रोफेशन में आप अगर सीए हो तो क्या आप डॉक्टर के प्रोफेशन में जा सकते हो? नहीं। आप अगर डॉक्टर हो क्या आप सीए के प्रोफेशन में जा सकते हो? नहीं। सिमिलरली मैनेजमेंट में अगर आप एमबीए कर रहे हो तभी आप मैनेजमेंट के प्रोफेशन में जा सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप नहीं एंटर कर सकते, क्योंकि वहां पर भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। यहाँ पर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, आपको सारे कंप्लीट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनके कॉन्सेप्ट, इनके टर्म्स, एक्टिविटी, सबको प्रोफेशनली नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। वहाँ पर एंट्री बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड होती है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ऑल प्रोफेशनल्स आर एफिलिएटेड टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे कि एक सीए है तो वो आईसीआई से रेगुलेट होता है, आईएमएल से डॉक्टर एमबीबीएस करते हैं, ऐसे ही मैनेजर्स भी एमबीए करते हैं। लाइक मी, मैंने एमबीए किए हैं तो मैं अभी मैनेजर बन सकती हूँ, मैं फ्यूचर में कर सकती हूँ मैनेजर की जॉब और सीईओ के लेवल तक भी कर सकती हूँ। तो ये प्रोफेशनल एसोसिएट्स हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, ऑल द प्रोफेसर्स आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट। यस, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट में आप कोई भी कुछ भी करो, कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सो दिस मोटिव, द एम ऑफ द प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। सिमिलरली एम क्या होता है हर प्रोफेशन का कि सर्व इट्स क्लाइंट, लाइक डॉक्टर का अपने पेशेंट्स को सर्व करना, लाइक वाइज मैनेजर का काम क्या होता है अपने कस्टमर्स की नीड, प्रेफरेंस, डिमांड्स को फुलफिल करना। Thank you for today. If you want to learn more things about this chapter, I will continue in this video in the next video. Please watch it, like it, subscribe it, and share it. Hope you like it. Bye bye. Take care.